Requesting everyone to please write hi in the chat box. Moving forward, the beacon of DME Media School is Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School and Director of DME Studios and Production. He is an accomplished media professional, researcher, author, anchor, and political analyst. He has worked at different media platforms ranging from theatre, puppetry, print, radio, television, films, and digital before switching over to media academics and research. Dr. Saxena has played long inning in active journalism, having associated with groups like The Pioneer and Amrit Bazar Patrika during the 1980s. He has worked as a correspondent for the first ever TV Hindi news magazine Parakh on Doordarshan during 1990s. He has been anchoring the highly rated program of AIR FM Gold, Market Mantra, for close to 2 decades. Sir possesses both professional and academic experience to enrich the teaching experience of students. His students are working in prominent news channels and media organizations. Under his able leadership, students have been placed with prominent organizations like the Times of India, All India Radio, NDTV, News Nation, the Economic Times, the Indian Express, Dainik Jagran, and Sahara. The Department of Journalism and Mass Communication in Delhi Metropolitan Education is headed by Dr. Susmita Bala. She's an accomplished teacher and a trainer equipped with rich experience in media industry and academics for more than 3 decades. She started her career as a journalist in Dainik Jagran newspaper in 1986 and turned to media teaching at Agarsen Girls PG College, Varanasi in 1990. She has taught in colleges of GGSIP University, namely WIPS and MBSEM. Dr. Susmita has authored 2 books, co-authored 2 books, and edited 2 books, and written chapters in 3 books. She has been a member of jury of Akashvani Awards organized by AIR for many years. Under her guidance, we have been able to achieve academic excellence and use innovative pedagogies to impart knowledge. Before we start with the interaction, I would request everyone to please keep the audio muted and request you to please write the question in the chat box. I and Dr. Amrish Saxena will be taking up questions on your behalf. Looking forward to an insightful session. The topic of discussion of today is challenges before mainstream media in the phase of pandemic and infodemic, very relevant in the contemporary times. The students joining us today will learn about how to make the meaning of message and how to deal with information overload. The lecture is particularly important because fake news has become a phenomenon in the modern era of digitization and social media. The consumption of news on social media, accentuated by COVID-19, has further resulted in posing mammoth challenges in front of the mainstream media. We are being joined by prominent TV anchor and journalist Amish Devgan, who will enrich the discussion on the topic. Let us have a glimpse of his work. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। हमारे बीच हैं जाने माने फिल्म अदाकार, मुखर वक्ता अनुपम खेर। प्लीज वेलकम हिम। प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करा तो पाकिस्तान की तो एंट्री हुई एक बार फिर। पाकिस्तान की एंट्री कहाँ हुई? उन्होंने हमारे सेना के जवानों की वीरता की बात करी और भारत की फर्म पॉलिसी की बात करी, भारत की निश्चल फर्म रक्षा नीति की बात करी। तो क्या हम हमारी सरकार की रक्षा नीति की बात चुनाव में नहीं कर सकते? दोबारा याद दिलाया कि कांग्रेस सबूत मांग चुकी है सर्जिकल स्ट्राइक। तो स्वाभाविक रूप से मांगा है, तो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। जब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी जवाब देने पड़ेगी। आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान पर अगर बात होगी तो अब सिर्फ पीओके पे होगी और कुछ नहीं। ये बात तो दूर है। हकीकत यह है कि भारत की संसद ही कई बार इस प्रस्ताव को पारित कर चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ये भारत का है जी। इसलिए मेरे स्टेटमेंट का कोई बहुत उसकी अहमियत नहीं रह जाती। सुबुई कांड, ये विरोध का एजेंडा एक तरफा क्यों होता है? बलरामपुर पर सन्नाटा, लेकिन हाथरस पर पूरा शोर मच जाता है। संबित पात्रा
ठीक है अखिलेश जी, अब आपको पूरा वक्त मिला, आपको पूरा वक्त मिला। पिछले 6 मिनट से 5 मिनट से आप ही बोल रहे हैं। संबित पात्रा, मैं आपको रुक करता हूँ, 13 मिनट के बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछूं, सिलेक्टिव एजेंडा है या भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए ये विपक्ष की लामबंदी है कि कटघरे में हम भारतीय जनता पार्टी को रख देंगे, अगर हमारी स्टेट होगी तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप हो जाएंगे, सब मौन हो जाएंगे, लेकिन अगर बीजेपी की स्टेट होगी तो फिर कोई बचेगा नहीं पॉलिटिकल, और आप फंस जाते हैं। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मैं विज्ञान आपसे करता हूं। नतीजे कल सुबह 8 बजे से आना शुरू होगा, लेकिन उससे पहले कुछ आहट होती है, और वो आहट घबराहट दिख रही है विपक्ष की, जिसमें स्ट्रांग रूम से पहले आप जामर लगा दीजिए, राहुल गांधी आए नहीं, सोनिया गांधी आए नहीं। क्या आपको लगता है हार से पहले हार गया विपक्ष? देखिए, मैं 2-3 बातें आज सच में आपके प्रोग्राम में स्पष्ट कर दूं। ये मायावती से चालू हुआ है ये ईवीएम का रोना धोना। सब कॉन्टिनेंट को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या आप मानते हैं कि धर्म के आधार पर बंटवारे की वजह से ही ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया और इसकी जरूरत थी? जब पार्टीशन कर लिया तो जहां शेर वहां सवा शेर। आपने तो तय किया है कि मुसलमान नहीं रह सकता, तो ओवैसी साहब को क्यों लगता है कि अभी सिर्फ पार्टी ने कहा था हमें पाकिस्तान में जुड़ना है? आपको नहीं पता मीर लायक अली खान ने और इन लोगों ने कितना पैसा भेजा पाकिस्तान को? अमीश देवगन 100 बारी बोलेगा अपने गलत कहा है, आपके शब्द गलत थे, आपको इनकी बात बुरी लग सकती है, आप इनकी बात को काउंटर कर सकते हैं, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल मेरी बहस में जायज नहीं है। इसे सलाम करिए, क्योंकि ऐसा कम देखने को मिलता है। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को रौंदा गया था, मारा गया था, पूरा देश चुप था। पूरा देश इसलिए चुप था क्योंकि पूरे देश में सेकुलर गैंग हरकत में था, लेकिन पूरा देश इसलिए भी चुप था, किसी ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझा नहीं। वो लड़की आज रो रही है, वो लड़की आज कह रही है कि सुनिए मेरी बात। मैं खुद इमोशनल हूं इस बात को सुनकर। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन आज का निष्कर्ष यही है कि चश्मा कोई भी चढ़ा ले, लेकिन जनता जनार्दन यानी आपका चश्मा सबसे बड़ा है, और आपके चश्मे को सलाम। नमस्कार। Now the moment has arrived for which all of us have been waiting for. We have with us today prominent TV news anchor and journalist Amish Devgan. He's the executive editor of News 18 India. Mr. Devgan has an extensive body of work spanning 16 years and has worked in the past with Zee Business and Hindustan Times. He has hosted prominent primetime shows like Big Story, Big Debate, Commodity Market, Mandi Live, Takkar and Aar-Paar. Mr. Devgan possesses vast knowledge on pertinent subjects like politics, business, economy, agriculture, and financial market. He has won praise and carved a niche for himself among the galaxy of anchors. We are so glad to have you here, sir. So before I hand over to Amrish, sir, who will be moderating the session for today, I want to just ask about your remarkable journey. What is the recipe of being this famous primetime anchor? So please unmute yourself. You can hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, there is no recipe of that. I'm very, very humbled. I'm very, very thankful to you. जो आपने clip दिखाया. There is no recipe for a successful news anchor. जब मैंने first time हिंदुस्तान टाइम्स के ऑफिस में एंटर किया था, I'm sharing you. आपने एक successful न्यूज एंकर और जर्नलिस्ट की बात बोली, तो आई थिंक चौथा दिन था मेरे करियर का, और मुझे बोला गया कि मैंने बोला कि वो सीनियर है, उन्होंने बोला ऐसा करने के लिए। तो माय बॉस टोल्ड मी कि जर्नलिज्म में वही सीनियर होता है जो फ्रंट पेज पे होता है, जिसके पास हेडलाइन होती है। द रिपोर्टर विच हैज हेडलाइन, ही इज द सीनियर पर्सन ऑफ दैट डे। सो मैं अपनी टीम में किसी को ना सीनियर जूनियर की तरह ट्रीट कभी मैंने करा नहीं, ना मुझे मेरे किसी बॉस ने करा। मेरे जो एडिटर्स रहे, उन्होंने मेरी भरपूर मदद करी जहां पर मैं पहुंचा हूं। और आज भी आई एम वर्किंग विद न्यूज 18 नेटवर्क, आई एम लुकिंग आफ्टर हिंदी क्लस्टर, सो वेरेवर आई एम देयर आल्सो दे लिसन टू मी, आई लिसन टू देम। कुल मिलाकर अपनी
इरादों को, अपनी बातों को थोपना is not everything. It is about debating it. It is about consulting it. It is about getting the facts, which is very, very important. When we did Moin Qureshi's story, I still remember my that point of the Z Business editor was very, very, not Z Business editor, Z News editor was very, very adamant. Now, how can we do this story? Ye facts nahi hai, wo facts nahi hai. Then, when we broke the story, we had each of the fact, and it was just before 2014 election. 2014 January we broke the story, and Moin Qureshi पर आज की डेट में ईडी की कार्रवाई भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है. That's the hard fact. And sometimes in journalism, what I feel, बहुत सारे pressures आते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई pressure नहीं आता. I still remember when we broke coal scam at that point of time in 2012. I was the only anchor who broke it, and you can, आप पूरी सरकार हिल गई थी. नेक्स्ट डे पार्लियामेंट के अंदर इतना बड़ा तमाशा हो गया था कि आप समझ सकते हो कि भाई जिसकी सरकार हिल रही है, जो मंत्रालय हिल रहा है, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक भी बात चली गई थी. तो लुक एट द ऑडेसिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अगर आपके पास फैक्ट्स नहीं है, आपके पास फिगर्स नहीं है, वो कोर्ट में आपको घसीट के बहुत बुरी तरह से आपको लताड़ सकते हैं. बट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट लाइक दैट कि लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है. लड़ाई लड़नी पड़ती है सिस्टमैटिक ढंग से, लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक इफ यू हैव फैक्ट्स ऑन योर साइड, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस ऑफ अ गुड स्टोरी, आई थिंक दैट इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर मी एंड फॉर एनीवन the students who are watching me, हो सकता है उनके साथ हम आगे काम करें और उनसे मैं बहुत कुछ सीखूं. मुझे लगता है कि उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि रेसिपी यही है कि आप फैक्ट, फिगर, स्टोरी पर, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो प्रिंट हो, यू हैव टू वर्क ऑन अ स्टोरी. बिना फैक्ट्स के स्टोरी को आप लेके जाएंगे, देखिए आपका एजेंडा कुछ भी हो सकता है दिमाग के अंदर, किस स्टोरी के एंगल को आप कवर करना चाह रहे हैं, दैट इज समथिंग, लेकिन फैक्ट्स पूरे होने चाहिए. दैट इज द मेन रेसिपी ऑफ अ गुड रिपोर्टर, गुड जर्नलिस्ट. that is what I have believe in. And Mr. Saxena, हम तो उनको सक्सेना सर बुलाते हैं because he has taught me also. So जब हम उनके साथ भी होते थे तो वो भी एक ही बात बोलते थे कि अपनी स्टोरी के साथ आपको किस तरह से खड़ा रहना है वो आपके फैक्ट्स पे ही निर्धारित करेगा. Nothing else can define you. So Saxena sir, I would like you to take forward the discussion. Okay, so I thank you, Amish, for joining in this session, and as we have decided, thank you, sir. Thank you. So to discuss this topic, which I believe is very pertinent to our students. So first of all, I mean, the most important thing which is happening in the media circuit, in television news industry nowadays, the whole fight about TRP. So I would like to ask you that why there is so much hue and cry on TRP. ऐसी कौन सी चीज है TRP में जिसको लेके इतना झगड़ा है, और TRP का और जो न्यूज चैनल के कंटेंट हैं उसमें किस तरह की रिलेशनशिप है? I think जो TRP है वो किसी भी चैनल के लिए, not only news channel, for an entertainment channel also, for a geographical channel also, for any channel, it is important, but it is not the end thing. What I believe, बहुत पुरानी एक कहावत है कि आप किसी चीज के पीछे भागते हैं तो जीवन में कभी नहीं मिलती, लेकिन आप उसको बाय प्रोडक्ट बना के चलते हैं तो वो मिलता है. Genuinely, I'm telling you, with God's grace, whatever shows I have done, they have generated good TRPs. Be it, I was doing commodities market section with Z Business at that point of time. That was a #1 show. Then in Market as I used to do, that was also doing quite well. It was #1. And then I started a big story, big debate show. That was a #1 of its genre, not by 5-7% or 3% or 2%. It was 70-80% market share. Big story, big debate used to have it. I think I never ran for TRPs. I ran for stories, which are very, very important. When you do a relevant story, the TRP will automatically come. Or if you take last 3, 4, 5 years example also, it is not
when you run behind the TRPs, you get the TRP. It is when you do the story, you get the numbers, people watch you. लोग तो वही देखेंगे ना जो वो लोग देखना चाहते हैं. उसमें आप कितना भी आप अपनी तरफ से एफर्ट डाल लो कि मैं ये चीज लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ऐसा होगा नहीं. You getting me? Sir. Yes, sir. Yes. Sorry for the disruption. Now, another thing I would like to talk about is about the social media, because social media has affected everybody's life. And it has affected the mainstream media as well. Mainstream media, I mean the television, news channels, and the newspapers. So I would like to know from you that how this functioning of the mainstream media has got affected because of social media. I think social media is a very, very effective tool. And जहाँ तक social media की बात है, हिंदी ऑडियंस के रेलेवेंस में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज हमको लगता है कि ट्विटर ही, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को लगता होगा कि ट्विटर ही सब कुछ है, लेकिन ट्विटर सब कुछ नहीं है. फेसबुक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और अगर आप सोशल मीडिया में, आपको अब काउंट करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है, लेकिन फेसबुक का इंपॉर्टेंट रोल है. ट्विटर इज इन सर्कल जहां पर आपको न्यूज मिलती है. कोई नेता क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, किसी ने कोई शायरी बोल दी, किसी ने किसी का जवाब दिया, स्मृति ईरानी ने किसी बात का जवाब दिया. तो दैट काइंड ऑफ स्टफ यू गेट द न्यूज आल्सो फ्रॉम द ट्विटर. कई बारी आई एम टेलिंग यू, कई बारी क्या होता है कि दिस हैपन टू आई थिंक ईच चैनल कि आप हिंदी चैनल ट्विटर पे ट्रेंड देखकर आप स्टोरी को आगे प्रोजेक्ट अगर करते हो तो हमेशा आपको सक्सेस मिलता है. ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि ट्विटर जो है वो एक पर्टिकुलर जॉनर में काम करता है. आई डोंट वांट टू नेम एनीवन आउट हियर और कि किस एरिया के लिए है. आई थिंक द इशू विद सोशल मीडिया है कि लोग उससे, स्पेशली जर्नलिस्ट, और अब सपोज आई एम टेलिंग यू, अगर ये अभी हम लोग लाइव दिखा रहे होते सोशल मीडिया पर तो 1000 गालियां आ जाती लिखी हुई, उसमें बोलते नहीं. हमें सोशल मीडिया पे चल रहा है, फेसबुक लाइव चल रहा है. फेसबुक लाइव में तो लोगों के आप उसमें कमेंट देखेंगे तो अपना लोग अपना शुरू हो जाएंगे पूरा लिखने के लिए. अरे कुछ ना कुछ लिख भी रहे होंगे ये हमारे दोस्त लोग उधर, और मुझे लगता है कि उनको लिखना चाहिए, अपने सबको अपनी बात को लिखना चाहिए. लेकिन अब उसको सोचकर मैं इफेक्ट हो जाऊं या आप इफेक्ट हो जाओ, मुझे लगता है कि दैट इज नॉट द एंड पॉइंट, बिकॉज वहां पर आपके पीछे एक सेक्शन ऑफ द लोग वैसे ही पड़े रहते हैं. इट हार्डली मैटर्स. अल्टीमेटली मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे एक शो की आपने लाइन दिखाई भी कि जनता जनार्दन, पीपल, व्यूअर्स, जो लोग हमें देख रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है. वो जो 500 लोग देख रहे होंगे उसमें से 10 लोग कुछ खराब लिखेंगे तो उन खराब से इफेक्ट नहीं होना. वो गाली लिखेंगे तो आप थोड़ी गाली दोगे. तो माय अल्टीमेटली पॉइंट इज दिस, यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट दैट यू डोंट बिकम अ एंड ऑफ द डे आप ट्रोलर ना बन जाओ कि जो ट्रोलिंग करने के लिए. यू मेक पीपल ट्रोल यू बट यू डोंट बिकम द ट्रोलर. दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. लोगों का काम है कहना, जी लोग तो कहेंगे ही कहेंगे. आई एम टेलिंग यू, देयर आर मेनी पीपल, देयर आर मेनी मीम्स, मतलब मेरे लिए इतने सारे मीम्स बनते हैं. अगर मैं उन सबको अपने दिल पे लगाऊंगा तो मैं अपना काम कैसे करूंगा. एवरी डे मॉर्निंग my con call with my reporters, my team हमेशा ये रहती है कि स्टोरी क्या है, कल हमने कहाँ कमी छोड़ी, आज हमें कहाँ से कैसे आगे करना है. और मैं आपको बताऊं, इट इज टेलीविजन के अंदर देयर इज अ नो रिलैक्स टाइम. अगर आपको लगे कि आज वीकेंड है तो तो फिर आप टेलीविजन न्यूज में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि यहाँ ना सैटरडे है ना संडे है, यहाँ स्टोरी है. अब अगर हाथरस हो गया तो सैटरडे संडे मंडे कहाँ गया कुछ पता नहीं. अगर कोविड हो गया तब भी बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं. हमारे यहाँ भी कई सारी टीम्स हैं, जैसे फोकस टीम भी है, जैसे मार्केटिंग टीम्स भी है, वो करती है. लेकिन जो न्यूज रूम के लोग हैं उनको डेली ऑफिस आना पड़ता है. आई एम टेलिंग यू, अभी हाथरस में हमारा रिपोर्टर क्या हुआ था, ही गॉट कोविड बिकॉज ऑफ पैंडेमिक की बात कर रहे हैं. ही गॉट कोविड एंड ही इज नॉट वेल फ्रॉम 14-15. मेनी पीपल, इतने लोग हैं जो अयोध्या गए, किसी को हो गया. लुक, इट इज नॉट ओनली यू विच गेट सफर्ड, इट इज योर फैमिली ऑल्सो विच गेट सफर्ड, योर पेरेंट्स, एवरीवन. जिनकी पार्टनर्स है वो पार्टनर भी सफर करते हैं. माय पॉइंट इज दिस कि ये जो टेलीविजन न्यूज है ये डिमांडिंग तो है, लेकिन
इसकी जो चकाचौंध है ना, उसमें अपना दिमाग ठिकाने जरूर रखना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो वैल्यू है वो आपकी स्टोरी की वजह से है, और जिसमें आपके ब्रांड का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो कभी भी आपको अपने जहां पर भी आप खड़े हो, जो भी आप स्टोरी कर रहे हो, हमेशा सोचना चाहिए कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। जब भी आप स्टोरी करते हो तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा भाई। कम से कम आपके पास फैक्ट्स अगर जब तक पूरे नहीं होंगे तो आप उस स्टोरी पे स्टैंड लॉन्ग टर्म पे नहीं कर पाओगे। अगर कोई आप हार्ड हिटिंग इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कर रहे हो, इफ इट इज अ हाथरस स्टोरी, देन जस्ट रिपोर्ट इट व्हाट द फैक्ट्स आर। लेकिन अब आज की डेट के अंदर सोशल मीडिया है, तो एक नजर, क्योंकि आप सब आ रहे हो इस फील्ड के अंदर, आप उसके ज्यादा एक्सपर्ट्स होंगे, और मुझे बिलीव है कि आज की तारीख के अंदर जर्नलिस्ट के ऊपर भी एक कैमरा होता है। जर्नलिस्ट कैमरा एक रखता है, उसके ऊपर भी एक कैमरा होता है। आप देखिए किस तरह की वीडियोस वायरल होते हैं। यू हैव टू मेंटेन योर कंडक्ट आल्सो इन द पब्लिक आल्सो। सपोज मैं तो टेलीविजन पे डेली शाम को 7 बजे आके पूरा ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन माय कंडक्ट इज बैड, मैं पुलिस वालों से उलझ रहा हूँ, तो देन व्हाट? योर कंडक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यहाँ पर आपको अपने आप को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। दिस इज माय, मतलब मेरी एक आपको एडवाइस है कि मेंटेन योर कंडक्ट, बिकॉज आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल ही है, लेकिन आपका कंडक्ट खराब है, आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, आप बदजुबानी लोगों के साथ करने लग जाते हैं। देयर आर 10 other things. I hope you're getting me. आप कई बार आपका करियर उसकी वजह से भी बड़ा शॉर्ट लिव्ड हो जाता है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। So Amish, you refer to the conduct of the journalists and the functioning of the journalism, and particularly during this COVID period, a lot of things have changed, and this COVID-19 has affected, in fact, every walk of life, and it has made a very decisive impact on media, on journalism. So I would like to ask you, what kind of impact, though you refer to this to some extent, what kind of impact we find on journalism during this COVID-19 period? I think COVID-19 has made journalism, if you're getting me now? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. या होस्ट ने मुझको म्यूट कर दिया था, आई थिंक। नहीं, वो कुछ टेक्निकली कुछ हो गया। अच्छा। तो I would say this COVID has really taught us a lot of things. That चाहे देश बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, लेकिन आपका काम नहीं बंद होता, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप पर आती है तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। कम टीम में आपको कैसे काम करना है वो सिखाया, बिकॉज हमारा एक हाफ बाद में आता था, एक हाफ पहले आता था। कुछ लोगों को कोविड हो गया, कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो जो सुविधाएं थी हमारे पास वो ऑर्गेनाइजेशन ने हमसे नहीं ली, लेकिन इस पैंडेमिक ने हमसे वो सुविधाएं ले ली। आई एम टेलिंग यू, मुझे फर्स्ट टाइम कोविड का कब बहुत ज्यादा लगा कि कितना बड़ा चेंज आ गया है। हमारे पास कैमरामैन भी हैं, कैमरास भी हैं। मेरे को बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का इंटरव्यू करने के लिए जाना था, आफ्टर 1 ईयर गवर्नमेंट का हो गया था। पॉइंट वाज दिस कि अब वहां पर हमारी 2 कैमरा टीम्स हैं, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते आपस में, तो व्हाट टू डू। सो वी हैड 3-4 कैमरास। बोलो कैमरा तो हम 4 लगा देंगे, लेकिन लोग हमें मैनेज करने पड़ेंगे। उसके लिए एक मशीन चलानी होती है जो ऑनलाइन स्विचिंग करती है। दैट मशीन जो उनको चलाते हैं वो दोनों लोग दूसरी शिफ्ट में हैं। तो व्हाट वी डिड, हमने यहीं से एक कैमरा, दोनों कैमरा लगाए और उसकी स्विचिंग यहाँ पर करी। यानी 2 कैमरा से, 2 ओबी से, 2 लाइव व्यू से अलग अलग इनपुट आ रहा था। हमारी प्रोडक्शन टीम ने उसको करा। लुक एट द फंक्शन ऑफ इट, कि आप कम मैन पावर के अंदर आपको तो लाइव प्रोडक्ट देना है, यू मैनेज टू डू इट दैट। एंड भाई इवन important people, they were also very particular about how many people coming, how many people going, so that was also a thing. So that is why I think lot of things, scarcity में आपको कैसे काम करना है। सपोज किचन की अगर मैं बात करूं तो कम खाने में ज्यादा लोगों को कैसे खिलाना है वो आपको सिखाया। एंड क्योंकि हमारी वी आर द बिगर ऑर्गेनाइजेशन, तो कैसे कोलैबोरेशन होती है बिटवीन 2 चैनल्स, वी सॉ दैट आल्सो। आई थिंक which is quite learning experience, and I think लाइफ में once a time ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि I think this pandemic should go now.
तो आगे बढ़ते हुए एक जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हमें दिखाई दी ड्यूरिंग दिस pandemic, besides other thing, that the spread of fake news. I mean, we in academic world we put a different kind of terms to this, whether we call it misinformation or disinformation. Even yesterday we had a session wherein it was interpreted as a malinformation. But ultimately, it's like spreading the information which is not correct, which is not genuine. So, and then obviously all this information is being spread on the social media. And to some extent, we also find जी that such kind of activities are happening even on the mainstream media. And a lot of such accusations have been made that so and so channel is spreading the fake news. And this problem, though, was there already. But during this pandemic, this spread of all this fake news, all this wrong information increased manifold. Now, can you tell me that how this spread of fake information or wrong information has spread, has impacted journalism, and what kind of measures, in fact, the news channels or the media organizations have done to deal with this kind of problem? Yeah, very rightly said. Recently, there was a fake news example. I don't want to name the Amish sir, channel. sorry to interrupt you, but Yeah, we are unable to see your video, sir. my video is on. Can you see me? No, sir, No, no, but sir. you're not seen. We can hear you clearly. Yeah, Yes, sir. now it's fine. Yeah. Now. Okay, I think some network issue, I believe. Yes. Yeah, you can hear me and see me now. Yes, sir. Yes. Yeah. या अभी फेक न्यूज का तो अभी आपने बताया, फेक न्यूज का तो भी रीसेंट एग्जांपल, आई डोंट वांट टू नेम द चैनल, गांधीधाम में तनिष्क के शोरूम के बाहर बहुत हो गया है, फोर्सफुली कर दिया है, एंड द न्यूज वाज रॉन्ग. आई थिंक कई बारी ऐसी चीजें आती हैं, एंड विद द सोशल मीडिया वेरी एक्टिव, विद द गवर्नमेंट्स वेरी एक्टिव, बीट सेंटर बीट स्टेट गवर्नमेंट, they counter it, and not only government counter it, बाकी journalists भी अब counter कर देते हैं if the information is fake, and people are very, I to call everyone is a journalist. reporter जो है वो हर कोई reporter, आप observe करते हैं, आप वहाँ जो प्राइमा फेसी में लोग होते हैं वो खुद एक रिपोर्टर ही होते हैं जो रिपोर्ट ही आपको बताते हैं when you get the bites. तो मुझे लगता है कि आज के जमाने में फेक न्यूज फैलाना आसान है, तो उसको काउंटर करना भी आसान है. पहले के टाइम में बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब फेक न्यूज को आप काउंटर कर देते हैं. एंड आई एम टेलिंग यू, ऑल रिस्पॉन्सिबल, सोशल मीडिया का ये एक बड़ा ड्रॉबैक भी है कि यहाँ पर फेक न्यूज स्प्रेड बहुत जल्दी होती है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबल न्यूज चैनल जो कि जिसकी क्रेडिबिलिटी है और जो चैनल्स काफी समय से हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी अपने ब्रांड को एक या दो स्टोरी के लिए हिट होने देगा. नेवर एवर दे विल डू इट, because they have 10 cross checks, assignment level, as a bureau level, on desk, on rundown, so there are 4-5 checks, and finally the show program producer and then the anchor. There are 5-6 checks before that. So it is very tough for a news channel, but sometimes the information comes fast, it releases fast, then you get the information and the correction is done. So in my point of view, the fake news is what, when deliberately you want to make a news and which is not the news, that is fake news. Sometimes information comes and that gets updated later, that is not a fake news. So there is a difference between fake news and a deliberate attempt to make the news. बट देन न्यूज चैनल्स ने क्या इस तरह का कोई अरेंजमेंट किया है, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जिसकी वजह से दे आर सेव्ड? बिकॉज एज यू सेड कि बहुत बार आपको पता नहीं होता, हो सकता है कि गलती से हो, तो इसको रोकने के लिए क्या न्यूज चैनल्स ने किसी तरह का कोई मैकेनिज्म बनाया है? आई थिंक मैंने वही आपको बताया सर कि न्यूज चैनल जो हैं वो असाइनमेंट लेवल पे भी, और स्पेशली जो सोशल मीडिया के थ्रू स्टोरी आती है, जब तक हमारा रिपोर्टर कंफर्म नहीं कर देता, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज वी हैव अ लार्ज रीजनल क्लस्टर ऑल्सो. आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के अंदर when Hathras
sad incident happened, and we all know it was quite bad. Look at the information क्या spread हुई that उस लड़की की जीभ को भी काटा गया. But the information we had, it was not like that. So we stick to our news, and I think police also said this कि जीभ नहीं कटी थी, and medical reports were also like that. So my point of view is this कि कई बार 10 लोग एक चीज कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कहीं आप ही गलत कर रहे हो, लेकिन सच होता है, सच एक भी आदमी बोले लेकिन एक्चुअली वो फैक्ट सामने आता है. एंड इफ यू लुक एट हाथरस इंसिडेंट के अंदर कई ऐसी चीजें हुई जो कि ट्रेडिशनली फॉलो नहीं होती थी. द वे थिंग्स वर हैंडल्ड एंड द वे बॉडी वाज क्रिमेटेड, व्हिच वाज वेरी वेरी सैड, एंड हाउ अ गवर्नमेंट कैन डू इट, एंड हाई कोर्ट हैज पुल्ड अप the state government and the state babus also for that. But all said and done, जो चीज हुई नहीं है उसको आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं. लेकिन आप उस टाइम पर जल्दी में या स्टोरी को बड़ा बनाने के चक्कर में आपने 50 चीजें चला दी, लेकिन उसमें से अगर 4 भी गलत निकल रही हैं, then it is a responsibility to correct it. But I am very very proud of this, that we were the only channel I think to report it कि जो facts थे, facts के ऊपर, facts पे जो भी था वो हमने रिपोर्ट करा. Amish, talking about the journalism and mass communication education, because we are an institute which offers this 3-year journalism and mass communication program, BJMC, and you have also done the bachelor's degree in journalism and mass communication. So taking a clue for that, how much importance you attach to this formal education at the bachelor's level or even the master's level in journalism and mass communication for the people who want to pursue a career in journalism and media? I think education is very very important, and if you look at journalism courses and communication courses, I think they are backbone of what you do in future. So it is important कि आप अपनी backbone को strong रखें, because I always think कि जैसा आपका बेस होता है, और ये कोई कहने की बात नहीं है कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर थ्योरी पढ़ाई जा रही है, मैं आपको थ्योरी की बात नहीं कर रहा. जो आपका बेस होता है ना, उसी से आप, जब तक बिल्डिंग का नींव ही स्ट्रांग नहीं होगी तो इमारत क्या बनेगी. तो वो नींव मजबूत होनी बड़ी जरूरी है, और वो इसलिए जरूरी है, आपको लगता है कि आप कॉलेज आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि जब आप कॉलेज को खत्म कर ले उसके 3-4 साल तक आपको ऐसी सिचुएशन लगे कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, अच्छा था मैं मैनेजमेंट का कोर्स कर लेता बॉस. तो फिर आप मैनेजमेंट का कोर्स करते. जब आपने ये कर लिया है, जब आप इस जगह आ गए हैं, फिर 100% करिए. आप अपनी लाइन चूज कर सकते हैं. जर्नलिज्म इज फर्स्ट ऑप्शन, पब्लिक रिलेशन इज द सेकंड ऑप्शन. आई एम नॉट कैटेगराइजिंग इट कि व्हाट इज फर्स्ट एंड व्हाट इज सेकंड. देयर इज journalism, public relations, advertising, media management, now social media, digital. मैं लास्ट टाइम भी एक बारी आपके इसी, आई थिंक दिस इंस्टीट्यूट ओनली आई केम, तो आई टोल्ड कि डिजिटल हैज अ ह्यूज पोटेंशियल, वेरी वेरी बिग पोटेंशियल फॉर द डिजिटल. लुक एट इट, हाउ स्मॉल वीडियोस आर मेड. आपके पास तो इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप सोच नहीं सकते. एट योर होम आल्सो यू कैन स्टार्ट योर थिंग. Look at the startup cycle which people are doing now. But the idea has to click. The idea has to click. And if you'll follow money, then तब तो कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर आप आइडिया को फॉलो करेंगे तो then the revenue part, the money part will come second, and that will be much bigger than your idea. The idea needs to click कि आप क्या आइडिया दे रहे हो. आज की डेट के अंदर यू विल बी, इस पैराडाइमिक के अंदर आपको पता है मूवीज का जो बजट है फॉर द सोशल मीडिया इज गॉन अप ड्रास्टिकली. ये जितनी वेब सीरीज हैं ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो आती हैं, ये न्यूज चैनल्स पर तो अपना जो देते हैं वो देते ही हैं, लेकिन दे प्रोवाइड जो न्यूज चैनल्स और एंटरटेनमेंट चैनल्स के ऊपर, बट देयर सोशल मीडिया स्पेंडिंग इज ह्यूज. और वो शॉर्ट वीडियोस बनवाते हैं बाकी बहुत सारे लोगों से. एक शॉर्ट फिल्म के 30-40 वीडियोस बन रहे हैं. नॉट ओनली फॉर देयर फिल्म, सम क्रिएटिविटी अराउंड इट.
So that is the point. And look at the businesses growing in social media sector. The business is growing drastically. So there is a huge opportunity there. And सर ने जैसा पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ कि बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक्स बताए जाएंगे. अब आपको अपने प्रोफेशन में जाकर स्टोरी कैसे एडिट करनी है वो बताया जाएगा, लेकिन अब स्टोरी आप कितने टाइम में एडिट करते हैं वो तो आपके स्किल के ऊपर है ना. तो आपके स्किल के ऊपर है. अगर डीएमई का ठप्पा और उसके बाद सब कुछ ही अच्छा हो तो ये तो होता नहीं है. वो तो आईआईटी वालों के साथ भी नहीं होता, तो बात ही हम छोड़ दें. तो इट इज नॉट दैट. जब मैं भी कॉलेज में पढ़ता था तो कितने लोग थे हमारे साथ. कुछ लोग न्यूज में आए, कुछ लोग मूवीज में चले गए, कुछ लोग कहीं और चले गए, कुछ लोग मैनेजमेंट में चले गए. आफ्टर दिस सबको लगा कि मेरे को ये करना ही नहीं है, वो 2 साल बाद कहीं और चले गए. तो आई नो दिस हैपेंस, एंड नॉट ओनली इन माय एवरीवेयर. तो आई स्ट्रांगली बिलीव, एंड मेरा तो बड़ा स्ट्रांग बिलीव है इसके अंदर कि जो भी आप करिए वो दिल से करिए. अगर नहीं दिल से कर पा रहे, आप अपना पैशन समझ के करिए. अगर नहीं कर पा रहे तो फिर मत करिए, फिर कुछ और करिए जो आपका दिल करे. So Amish, you came, as you remember, last time also to DME and you addressed the student face to face. Now this time it is happening online because of pandemic. So can you tell some final message to the student, though you have already given a lot of tips? Any final thing to the students, what all they do? Particularly, I am asking this keeping the DME students in mind, that what all they should do in a nutshell. सर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, तो मैं बोलूंगा कि मेरे को कुछ नहीं पता. लेकिन मैं एक बात का बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूं कि आपको गलत रास्ते पे नहीं चलना किसी भी तरीके से. और वो गलत रास्ता आप बोलेंगे कि ये कोई मॉरल लेक्चर है. गलत रास्ते की मेरी बात है, जबरदस्ती गलत स्टोरी पर काम नहीं करना. गलत स्टोरी इन द सेंस कि आपको पता है कि वो स्टोरी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती आप उसको स्टोरी बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहानी खुल जाएगी. आपके बॉस को भी पता लग जाएगा, आपकी जो व्यूअर्स है उनको भी पता लग जाएगा. वो नहीं करना है. पॉइंट नंबर 2 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आपको बेसिक समझाए जा रहे होते हैं तो आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड इट फुल्ली, और जहां आपका इंटरेस्ट है उसको तो बहुत अच्छे से समझिए. पॉइंट नंबर 3 जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आप एडवर्टाइजिंग में जाएं, आप पीआर में जाएं, आप टेलीविजन में आए, आप सोशल मीडिया पे जाएं, लैंग्वेज, भाषा में स्पष्टीकरण यानी क्लैरिटी बहुत महत्वपूर्ण है. तो आप अगर अपना नॉर्मल पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, भाषा का ज्ञान जरूर रखिए. द importance of language is very very critical in the profession we are in. कि हम जो लिखते हैं, हम जो लोग बोलते हैं, वो सार्वजनिक होता है, that is public, and लोग त्रुटि निकालते हैं. मैं आपको बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर वहां पर कई बारी if you are tweeting something, तो कई बार ऐसा होता है कि एक ई की मात्रा उधर उधर लग जाती है, and it happens. वो सिस्टम ही ऐसा है और लोग करेक्ट करते हो और मेरे को फिर करेक्शन देना पड़ता है. आई एम टेलिंग यू वेरी स्मॉल थिंग. भाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है. जो अगर आप टेलीविजन स्क्रीन पे आना चाहते हैं, आप कैमरा पे आना चाहते हैं, तो भाषा तब भी महत्वपूर्ण है. आपकी डिक्शन अच्छी होनी चाहिए, और अगर आप लिखाई करना चाहते हैं तो लिखाई अच्छी होनी चाहिए. उसमें व्याकरण भी इंपॉर्टेंट है. हिंदी में, अंग्रेजी में ग्रामर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉमा का लगना है, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू हैव वर्कड इन अ न्यूज़पेपर, तो वहां पर तो आपकी स्टोरी में कॉमा फुल स्टॉप इधर उधर लगे हो तो उठा के बोलते हैं पहले अंग्रेजी सीख के आओ. मतलब मैं आपको ये हार्ड शॉट दे रहा हूँ, अंग्रेजी सीख के आओ, फिर स्टोरी लिखना, फिर जर्नलिज्म करना. दिस हैपेंड, एंड व्हेन आई एम टेलिंग यू, आई कैन रिकॉल अ वेरी वेरी सीनियर जर्नलिस्ट जिसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने सीखी है. आई डोंट वांट टू टेल द नेम आउट हियर, बट ही वाज अ वेरी वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, एंड लेटर ही बिकेम एडिटर ऑफ अ वेरी वेरी बिग न्यूज़पेपर एंड another thing also. But the language is very very important. I think these 3 are
क्वाइट बेसिक्स जो मुझे लगता है करने चाहिए, और बाकी डूज तो यही है। और डोंट से कि कभी भी गलत स्टोरी के पीछे भागना मत, और गलत तरीके से आप जब भी करने की कोशिश करोगे यू विल गेट कॉट, एंड विच जो आपके वो प्रोफेशन को हमेशा जब भी आप कैलकुलेट करो ना, तो ये कैलकुलेट करना चाहिए कि ये काम करने के बाद मेरे हाई कितने हैं और मेरा लो कितने हैं। अगर लो 100% है और हाई 5% ही है तो फिर घाटा है भैया उसमें। तो दैट इज अ हार्ड पॉइंट, क्योंकि आई एम अ बिजनेस जर्नलिस्ट आल्सो, तो आई एम टेलिंग यू इन दैट सेंस। Right. So, Yashasika, we have 5 minutes left. So, if there are any questions in the chat box, some pertinent questions, then you please ask. Sir, there's this question from our media aspirants. So, usually, all the media aspirants that join the media industry want to be an anchor. So, what qualities should they imbibe in themselves to become anchors or reporters? What qualities should they have? Sir, unmute. Yes. Amish, unmute. Unmute करिए. या हो गया आई थिंक एंकर बनने के लिए तो एक ही क्वालिटी इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी होनी चाहिए और आपका नॉलेज बेस थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप एंकर बनना चाहते हैं, अगर टेलीप्रॉम्प्टर रीडर बनना चाहते हैं जो कि चलती है, फिर तब सिचुएशन दूसरी है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि डिक्शन इंपॉर्टेंट है उसके लिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड आप एंकर नहीं अच्छे हो सकते, बिकॉज पता नहीं सामने से रिपोर्टर क्या दे रहा है इन्फॉर्मेशन। एंड इन टुडेज एज इट इज सो डायनेमिक। अभी आप सुशांत सिंह राजपूत के केस पे रिपोर्ट कर रहे हो, फिर आप ड्रग्स केस पे रिपोर्ट कर रहे हो, चौथी चीज हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर का कोई भाषण आ गया, चाइना आ गया, तो लुक एट द डाइवर्सिटी आल्सो। तो यू नीड टू रीड द स्टफ व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द थॉरो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, एंड द कन्विक्शन फ्रॉम व्हिच व्हाट यू से इज राइट इज सो इंपॉर्टेंट। जब तक आप खुद ही कन्विंस नहीं हो कि आप सही बोल रहे हो, तो आपका व्यूअर कैसे कन्विंस होगा? दैट इज सो इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ भाषा की स्पष्टता, जिस भी भाषा में आप एंकरिंग करना चाहते हो, रीजनल हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी भाषा की क्लैरिटी क्या है। जब तक भाषा में स्पष्टीकरण नहीं होगा तब तक रेडियो भी हो, रेडियो में तो और ज्यादा भाषा की स्पष्टीकरण और ज्यादा चाहिए रेडियो के अंदर, क्योंकि आप टेलीविजन में तो आप या फिर सोशल मीडिया में अगर आप ऑन कैमरा हो तो 10 और चीजें आप कर सकते हो, जिसमें आपका फेस भी होता है, आपके हाथों की मूवमेंट्स भी होती हैं, एवरीथिंग इज देयर। बट व्हेन यू ऑन रेडियो इट इज क्वाइट स्ट्रांग मीडियम, तो आपकी जो भाषा होती है वही सबसे महत्वपूर्ण। Yes, और sir, thank you. एंकर के लिए मैं ये एक और कहता हूँ, पेशेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। आते ही आप एंकर बन जाओगे ऐसा नहीं होता, हर चीज का काम करना पड़ता है, उसके बाद आप इस सिचुएशन में आप एंकरिंग करिए। पहले 10 चीजें सीखिए, उसके बाद एंकरिंग करिए, क्योंकि अगर आप एंकर बनने के मोटिव से आएंगे ना, तो देन यू विल लैंड नोवेयर। Very, very right, sir. I completely agree with you. Now, thank you, Amish, sir. It was indeed an insightful and My enriching pleasure. session. Enriching session. I'm sure a lot of students have got their doubts clarified today and will make an informed decision while looking for news, and have also got inspired. I've got a lot of messages saying that you speak very well and everything, sir. And now I would request, Thank you. Yes, sir. I would now request Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, to please address the gathering. Yashasika, thanks everyone. Thank you, Amish. Actually, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आके इतनी इम्पोर्टेंट बातें अमीश ने शेयर की हुई हैं, तो स्टूडेंट्स से मैं यही कहना चाहती हूँ, जो सर ने बोला है उसको इम्प्लीमेंट करो, एंड फैक्ट्स पे काम करना है, जैसे इम्पोर्टेंट स्टोरी को फोकस रखना है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कंडक्ट, बिहेवियर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्नलिस्ट की क्या होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड नो सैटरडे संडे मीन्स 24/7 आपको काम करना है। हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट,
ऑल द टाइम हम सोचते हैं कि जैसे अभी अमीश देवगन ने भी बोला कि आपको के पास सैटरडे संडे नहीं है. एक्चुअली सैटरडे संडे नहीं है. 24/7 थिंकिंग एंड वर्किंग इज इम्पोर्टेंट. इफ यू आर डूइंग BJMC तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किस फील्ड में जाना है, किस लाइक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या जिस भी फील्ड में जाना है. तो ऑब्वियसली लास्ट मोमेंट 11th आवर कोई भी स्टोरी आती है, उसको कवर करने के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए. सो रेडी फॉर द शो. एंड अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है एक्चुअली. तो काम करने के लिए आप तैयार रहेंगे और ऑल द टाइम तैयार रहेंगे, 24/7 तैयार रहेंगे, तब आपके सामने अपॉर्चुनिटीज भी हैं. और फैक्ट्स की जैसे बात की अमीश देवगन ने कि आप अपने को तैयार रखें और लैंग्वेज के लिए पे बहुत एक्सरसाइज करें. राइटिंग, स्पीकिंग, एंकरिंग के लिए केवल एंकर फेस वैल्यू नहीं होती, एंकरिंग के लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है. तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखना है. सो थैंक यू, थैंक्स अगेन टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. Thank you. It has been a wonderful session and you all have been very patient listeners. I would like to inform you that our special interaction series is an ongoing series. Tomorrow we will be joined by Pinas Tyagi, Anchor News Nation. Thank you. See you tomorrow. Please join tomorrow.